Hey, what's up, guys? I am Mani. Welcome back to Tech Skills. This video talking about basics of HTML. Please subscribe to my channel. So let's code it. फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज HTML, व्हाट इज hypertext, what is markup language, what are the different type of HTMLs 5, what are the basic structure of HTML, how to save HTML files, what is the importance of learning HTML, how to HTML elements, how to distributing between headings and paragraphs in HTML, what are the void elements, what are the nested elements, what is the different type of elements in HTML, what is an attribute, what is a comment, how to apply styles in HTML. First of all, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language using a design a web page. HTML elements are represented by tags. HTML assigned by CSS, cascading style sheet, and scripting language like JavaScript. HTML was created document page that displayed on the web page. HTML help to browser to display text, load image, and other elements. HTML was created 1993 by Tim Berners-Lee. What is his hypertext? What is hypertext? The word of the words that contain a link to a website is hypertext. The term hypertext was conceived in 1963 by Ted Neslon. For example, a हर्फ ये हमारा लिंक है. This is hyperlink. Hypertext. हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट के थ्रू जैसे ही हमने हाइपरटेक्स्ट को क्लिक किया तब डायरेक्टली लिंक के थ्रू वेबसाइट पे आ सकते हैं. मतलब कि हाइपरटेक्स्ट के थ्रू हम किसी भी पेज को चेंज कर सकते हैं और रिडायरेक्टली उसके पेज पे जा सकते हैं. व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? A markup language used to text defined by element within a document. A readable files contain standard word then the type of the programming syntax called a markup language. Example of the markup language is HTML, HTML, and XML. For example, paragraph tag. Hello, welcome to. Bold में हमने लिखा है full stack development course. Bold is close and P is close. तो जो बोल्ड में लिखा हुआ जो पार्ट है वो हमारा मार्कअप लैंग्वेज है. जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है. बेनिफिट ऑफ HTML5 और अदर वर्जन इन HTML. HTML5 वो क्लीनर मार्कअप लैंग्वेज है. कंसिस्टेंसी, सपोर्ट मल्टीमीडिया विथ न्यू टेक्स्ट, ऑफलाइन एप्लीकेशंस इन कैच, ये HTML5 के बेनिफिट्स है. स्ट्रक्चर्स ऑफ HTML. जो हमारा डॉक टाइप HTML है वो एक HTML5 का डॉक्यूमेंट है. ये हमारा डॉक्यूमेंट है और जो HTML लिखा है ये हमारा रूट एलिमेंट है. जो हेडिंग पार्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट. जो टाइटल पार्ट है वो हमारा पेज स्पेसिफिक टाइटल ऑफ द ब्राउजर इन बार टैब. जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है ये हमारा वो पर्टिकुलर कंटेनर फॉर ऑल कंटेंट. इसमें जो हमारा पैराग्राफ वाला जो पार्ट है वो हमारा की टैग. फर्स्ट ऑफ ऑल HTML जो लिखा है ये हमारा टाइटल्स है. स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखा हुआ है वो हमारा पैराग्राफ्स है. HTML file extension to be recognized by web browser. All HTML files must be special file of extension .html. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नेम में हमने लिखा है फर्स्ट फाइल्स .html. फाइल सेव का टाइप है ऑल फाइल्स.
Importance of HTML. HTML is the fundamental of the web page. What is the beginning of the basics levels of starting and web development? HTML for easy understanding and learning. Almost every browser supported in HTML. HTML elements. HTML is made of elements. There are elements are responsible from creating website, web page, designed to contain web page. All HTML elements used to starting tag and closing tag. Container inside between them. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पैराग्राफ टैग है. दिस इज द कंटेंट पार्ट इज एंड दिस इज द क्लोजिंग पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारा है वो हमारा एक एलिमेंट है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल में समझाया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल पी है, जैसे कि ये पी है हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ये पूरा हमारा कंटेंट है, और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा एक एलिमेंट है. हेडिंग इन HTML. HTML heading are titles of subtitles when to display on web page. There are 6 levels of heading defined by HTML. First of all, 6 headings is H1, H2, H3, H4, H5, H6. And first of all, H1 is highest heading, is main heading, and H6 is lowest heading, means last important headings. जैसे कि एग्जाम्पल में H1 is most heading, H2, H3, H4, H5 and H6. Paragraphs in HTML. First of all, P element defined by a paragraph. Browser itself added empty line before and after a paragraph. Content P element always starting with new line. P element वो है block level elements से. जैसे कि ये हमारा P है पैराग्राफ से, तो paragraphs is always starting with blank with new line, after is starting with new line. Void elements. All the elements in HTML does not require a starting tag and ending tag. Some elements do not have content in end tag is such as now as void element or empty elements. First of all, BR tag है वो हमारा void element है, और HR tag है वो हमारा void element है. BR tag है वो हमारा लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, और जो HR टैग है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेस्टेड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स इनसाइड अदर एलिमेंट्स आर अलाउड कॉलिंग नेस्टेड एलिमेंट्स. नेस्टेड साइड ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड एन नेस्टेड एलिमेंट. जैसे कि हमारा नेस्टेड है ये हमारा बोल्ड है, और एलिमेंट इन HTML ये हमारा एक नेस्टेड है. Type of elements. There are 2 types of elements: block level elements and inline elements. Block level elements was block on the page. There are appear in new line from the whenever content went to before, and content to going from also appear from on or new lines. For example, P tag and HR tag. P tag है वो हमारा always type starting with new line, एंड H1 टैग है वो भी हमारा ऑलवेज स्टार्टिंग विथ न्यू लाइन. इनलाइन एलिमेंट्स. इनलाइन एलिमेंट्स इज नॉट केस अ न्यू लाइन टू appear in the document. There will normally appear inside of the paragraph of HTML. A टैग है वो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, और B है वो भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ न्यू लाइन. Inline element is always starting with same line. Attributes in HTML. Special words we provide additional information about elements. Each elements are tags can allow to which defined by the behavior of the elements. Attributes should always appear with a starting tags. Attribute value in case sensitive multiple attributes can apply in single elements. जैसे कि P है वो हमारा एक एलिमेंट्स है, और ID एंड क्लास है वो एक हमारा एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट्स इन HTML. कमेंट. कमेंट आर टेक्स्ट नोट्स एडेड टू द प्रोग्राम टू प्रोवाइड एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स कोड. Comment is a program readable
explain, and another in source code. Comment is type of the code which ignored by all web browsers. Comment help to other understanding your code in incredibility, code reliability. Comment are placed between styles in HTML. HTML styles attribute is used to add styles on elements such as colors, font, size, and more than. The styles in HTML are regularly make the web page more activity engine and presentable. The styles apply to styles attribute known as inline styles, but applying styles is a good practice. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पी है पैराग्राफ टैग, उसमें हमने स्टाइल करके कलर का नाम ब्लू लिखा है, तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लू में। अभी हम ये सारी प्रैक्टिस हमारे वीएस कोड के अंदर करते हैं, तो लेट्स वीएस कोड। फिर हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वीएस कोड में आ जाने के बाद अभी हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने नेक्स्ट अगले वीडियो में सिखाया हुआ था कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। ये हमारा सेकंड वीडियो, इसके लिए सेकंड x.html। अभी ये बेसिक्स ऑफ HTML क्रिएट हो जाने के बाद भी हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं HTML5 का डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने के लिए C+1 प्रेस करना है विंडोज लैपटॉप में। बाद में आप जैसे ही एंटर मारोगे तो तुरंत ही ये आपको दिखाई देगा, आपको बॉयलर कोड दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं। हमारा टाइटल है बेसिक ऑफ HTML। बेसिक ऑफ HTML लिखने के बाद अभी हमें इसे चेक करना है कैसे ये हमारे पीसी में टाइटल पेज दिख रहा है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गो लाइव पे आना है। गो लाइव पे आने के बाद अभी पे दिखाई देगा बेसिक्स ऑफ HTML। ये हमारा बेसिक्स ऑफ HTML है। ये हमारा टाइटल में आपको शो होगा। अभी टाइटल में शो हो जाने के बाद अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिंक ऐड करना सिखाता हूँ। लिंक ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिंक टैग यूज करना है। ए टैग में लिंक टैग यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी ब्राउजर की लिंक, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल की लिंक ऐड कर रहा हूँ। गूगल, ये आपको यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी कर लेने के बाद अभी आपको चले जाना है VS कोड के अंदर। VS कोड में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है लिंक को। लिंक पेस्ट हो जाने के बाद अभी यहाँ पे आपको लिखना है गूगल। ये लिखने के बाद जैसे आप अपने लाइव सर्वर पे जाएंगे, मैं एक बार लाइव सर्वर पे चला जाता हूँ अपने वेब पेज पे। वेब पेज पे जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगी। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्टली आप नेक्स्ट लिंक पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा हाइपर टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट के बारे में दिखाता हूँ। अभी ये लिंक मैंने 3 बार कॉपी की हुई है। अभी ये हमारा इनलाइन एलिमेंट से देखिए ब्लॉक लेवल्स एलिमेंट पी टैग में लॉरेम है। ये हमारा एक डमी टेक्स्ट क्रिएट करता है। जैसे कि मुझे 5 वर्ड्स का टेक्स्ट चाहिए, ऐसे मैंने 3 बार लॉरेम टाइप किया हुआ है। अभी ये आपको मैं आपको ब्लॉक लेवल्स एलिमेंट दिखाता हूँ। ब्लॉक लेवल्स एलिमेंट में मैंने पी टैग लिया हुआ है। पी टैग में आपको यहाँ पे लॉरेम टाइप करना है और मैं 5 वर्ड का लॉरेम टाइप कर देने के बाद 5 वर्ड्स क्रिएट कर दिया है। अभी ये क्रिएट हो जाने के बाद मैंने इनको 3 बार कॉपी किया हुआ है।
अभी कॉपी हो जाने के बाद जैसे आप अपने ब्राउजर के अंदर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको स्पेस दिखाई देंगे बीच में, ये हमारी ब्लॉक लेवल से एलिमेंट्स है। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पे आपको हेडिंग टैग्स के बारे में दिखाता हूँ। हेडिंग टैग्स H1 के लेके H6 तक आते। फर्स्ट वाला मोस्ट हाईएस्ट हेडिंग है वो H1 है और लोवेस्ट हेडिंग है वो H6 है। तो H1 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 2, ये H2 है। H3 पे लिखता हूँ हेडिंग 3, H4 पे लिखता हूँ हेडिंग 4 एंड H5 पे लिखता हूँ हेडिंग 5 एंड H6 पे लिखता हूँ हेडिंग 6। अभी ये हमने किया है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 2 2। अभी ये आपको चेंज करना है तो ये आप सेपरेटेड भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको H6 करना है तो यहाँ पे H लिख के आपको मल्टीप्लाई 6 करना है तो डायरेक्टली आप H1 से H6 टाइप कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा H6 मल्टीपल टाइम हो रहा है, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हमने H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 ये हमने टाइप किया हुआ है। ये हमारा सबसे हेडिंग है वो H1 है, वो हाईएस्ट हेडिंग है। H6 है वो हमारा लोवेस्ट हेडिंग है। H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। अभी जैसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारा H1 H2 H3 H4 एंड H5। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें कमेंट ऐड करनी है, जैसे कि दिस इज कमेंट ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्लैश यूज करना है तो आपकी कमेंट हो जाएगी। कमेंट यूज करने के लिए ये हमारा कमेंट है, ये अभी हमें अपने ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगी, ये हमें ब्राउजर के अंदर शो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद बॉडी में आपको कमेंट शो होगी हमारी कमेंट से। कमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड ब्राउजर्स, ये हमारे कोड को अच्छे से यूज करने के लिए आपको समझ में आए इसके लिए कमेंट यूज करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने कोड को लास्ट में एंड में समझने के लिए काम आती है। फर्स्ट सेकंडली स्टाइल्स, अभी हमें स्टाइल्स के बारे में करना है। तो स्टाइल्स यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरेम 5 वर्ड्स में हमने कर दी है। अभी यहाँ पे स्टाइल यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल, यहाँ पे हमें कलर सिलेक्ट करना है जैसे कि पिंक, ये हमारा कलर टैग है। फिर सेकंडली हमने पी लिया हुआ है। यहाँ पे हमें लॉरेम 7, अभी यहाँ पे मुझे डॉलर साइट लिखा हुआ है, इसको हमें स्पेन टैग में ऐड करना है। स्पेन टैग में ऐड करने के बाद अभी हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड को स्टाइल करना है, जैसे कि स्टाइल्स कलर रेड, हमने ये कर दिया। अभी हम इससे वेब ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा ये हमारा पूरा पिंक कलर में है और ये हमारा सिलेक्ट किया हुआ वर्ड वो रेड कलर।